Okay, Bhaiya, we'll भाई start. साहब भाई साहब Okay, so we looked at some of the men of God, or men in the Old Testament whom God prospered. और हम देखेंगे कि वचन के अंदर बाइबल के अंदर जो उन लोगों के बारे में जिसको परमेश्वर ने समृद्ध बनाया Right? The Bible is very clear that God only blessed them. और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही है जिन्होंने उनको समृद्ध बनाया And it just means that God is not averse to blessing people, or he does not withhold blessing from people. और उसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है अपने अनुग्रहों को देने को रोक कर नहीं रखता Right? And the blessing of the Lord is what causes people to prosper. और वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो लोगों को समृद्ध बनाता है But we know that when God blesses, people can actually focus on the blessing and fall because of their heart being given to the blessing and not God. और हम देख सकते हैं कि जब वो अनुग्रहित हो जाते हैं समृद्ध हो जाते हैं परमेश्वर की ओर अपना हृदय लगाने की जगह पर वो उधर से भटक जाते हैं Okay. Yesterday we looked at these three realms of desires: lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. और हम तीन चीजों के बारे में क्षेत्र के बारे में कल देखे थे आंखों का लोभ जो लालच शरीर का लालच और जीवन का अहंकार See, God wants to bless, परमेश्वर चाहता है कि हमें अनुग्रह दे but if I am not careful, अगर मैं ध्यान न दूं if my heart is not for God, अगर मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति नहीं है then I will focus on these things, and drawn by lust, I will fall. और हम इस सारे चीजों की ओर हमारा ध्यान भटक जाएगा और हम लालच में गिर जाएंगे It talks about the prophet called Balaam. और बलाम नामक भविष्यवाणी करने वाले के बारे में लिखा हुआ है You can read about his story and his account in Numbers chapter 22 to 24. गिनती के Numbers chapter 22 to 24. गिनती 22 का 24 में हम पढ़ सकते हैं Right? It talks about what Balaam did and about the king Balak and so on. और हम देखते हैं कि बालाम ने क्या किया और किस प्रकार से किया But even though he resisted the rewards that the king wanted to give him, और वो राजा जो उसको अनुग्रह देना चाहता था उसको उसने तिरस्कार तो किया but we see that eventually he gave in. His heart was giving in to the rewards that the king wanted to give him. और हम देखते हैं कि आगे चलकर लेकिन वो राजा जो उसको अनुग्रह देना चाहता था उसकी ओर उसका हृदय चला गया Right? And so even in the book of Revelation it talks about the doctrine of Balaam. और हम देखते हैं सॉरी एवरी टाइम आई मिस दैट बुक In Revelation. प्रकाशित वाक्य हमेशा में छूट जाता है प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कैन यू कम अगेन पास्टर Right? It talks about Revelation 2 talks about the doctrine of Balaam, the teaching of Balaam. और हम देखते हैं दूसरे अध्याय में कि बालाम का जो शिक्षा था उसके विषय में Right? Though they were gifted people, he was a prophet of God. और वो लोग जो अनुग्रहित लोग थे वरदान से भरे हुए लोग थे भविष्यवाणी करने वाले लोग थे But his heart was drawn towards the reward of the king and therefore he fell. और उसका हृदय जो है वो राजा के द्वारा दिया हुआ भेंट की ओर उसका मन लगा हुआ था And his testimony is recorded for us in 2 Peter chapter 2. और वो दूसरे पत्रस में उसके बारे में लिखा हुआ है And another person that we see in the Old Testament, we read about him, is Gehazi. हमने दूसरे एक व्यक्ति के बारे में देखा था गहजी के बारे में Gehazi was the servant of Elisha. एलिशा का शिष्य था Okay, Elisha, the prophet of God. और एलिशा जो भविष्यवाणी करता था So Naaman from Syria comes and he's healed when he encounters Elisha, and Elisha asks him to go dip in the river Jordan. नामान जो सीरिया से आता है उसका जो बीमारी से चंगाई हो जाता है एलिशा जब उससे बोलता है कि 7 बार जो है नदी में जाकर डुबकी लगा So Naaman says, I want to give some reward to you.
और Elisha. नामान कहता है एलीशा से कि मैं तुम्हें कुछ तोहफे देना चाहता हूँ, And Elisha refuses the reward. और वो एलीशा क्या करता है, वो तोहफों का तिरस्कार कर देता है। And Gehazi, Elisha's servant, is watching all this, और गहसी जो एलीशा का सेवक था वो ये सब देखता है, and his heart desires the reward. और उसके हृदय में उस तोहफों के प्रति इच्छा प्रकट हुआ। Right? Because he's talking about gold and silver and clothes and all that. और वो उसमें कपड़े, सोना, चांदी उसके बारे में बता रहा है। And so Gehazi goes after Naaman. और गहसी क्या करता है, नामान के पीछे दौड़ता है। He thinks Elisha does not know. वो सोचता है कि एलीशा ये जानता नहीं है, So he goes after Naaman वो नामान के पीछे जाता है and he actually tells him a lie. और वो झूठ कहता है He says, "My master sent me." और कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे भेजा है। And there are some people who have a need. और कहता है कि कुछ लोग हैं जिसको जरूरत है, So please give me some silver and some clothes. और कहता है कि मुझे कुछ चांदी, सोना और कुछ कपड़े दे दे। And Naaman is more than happy to help him. और नामान बड़ा ही खुश हो जाता है उसको सहायता करने के लिए। But Elisha confronts Gehazi when Gehazi comes back. और जब गेहाजी जब वापस आता है, एलीशा उसके साथ भेंट करता है And he asks him, where did you go? और पूछता है, गेहाजी तू गया कहाँ? And Gehazi lies to Elisha. और एलीशा को गेहाजी जो है झूठ बोलता है He says, I did not go anywhere. और कहता है कि मैं कहीं भी गया नहीं था। Then Elisha says, no, when you went, I saw what happened in his heart. और एलीशा बोलता है कि गेहाजी तुम जब गए थे, मैंने अपने हृदय में क्या तुम्हारे साथ हो रहा है देख रहा था। So God had revealed to Elisha what had happened. और परमेश्वर ने उसको प्रकट करके दिया था गेहाजी के साथ क्या हो रहा है। And so the greed of Gehazi resulted in some bitter consequences. और उस गेहाजी के अंदर का जो लालच था, कुछ खतरनाक चीजों को उत्पन्न किया। Right? The kind of skin condition or the leprosy that Naaman had came upon Gehazi. और जो नामान को जो चमड़े का रोग था, वो रोग जो है गेहाजी के ऊपर आ गया। Right? Even in the New Testament, we read about the result of greed that Judas Iscariot had. यूदास इस्करियोत के जीवन में जो लालच के कारण किया था, उसके कारण उसके ऊपर जो खतरनाक चीजें हुए थे, उसको भी हम नए नियम में देखते That हैं। he betrayed the Lord Jesus for 30 pieces of silver. और वो 30 सोने के चांदी के सिक्के के लिए परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया था। And in the epistles, Paul talks about a man called Demas. और दीमस नाम का एक व्यक्ति के बारे में पौलुस बोलता है। He says, Demas, he has actually forsaken the ministry. और कह एफेसस में, एफेसियों की पत्री में कहते हैं कि दीमस ने के बारे में कि उसने मेरे को छोड़ दिया। And he's saying that he has loved this present world and he has left me. और वो कहता है, पौलुस कहता है कि वो आज की दुनिया के प्रति लोभ में है और मुझे छोड़ दिया है। Okay. So, this is the pull or the draw of wealth or money. और ये है जो पैसे का एक खिंचाव या लगाव। Okay. So, men of God have fallen because of money. और परमेश्वर के लोग जो हैं पैसे के कारण अपनी जीवन में गिर चुके हैं। And the Bible is very clear, and it mentions that these people fell because of money. और उसमें परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कारण, इस पैसे के विषय में ये लोग गिर गए थे। The Bible also mentions that God prospered them, He blessed them, and they prospered. They had money and wealth. और उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया और उस कारणवश वो लोग जो है समृद्ध हो गए थे। So the question is, what should I do? और सवाल ये है, मैं क्या करूं? Right? How should I treat this money? और इस पैसे के विषय को मैं किस प्रकार से इस्तेमाल में लाऊं? It's a blessing from God. वो एक अनुग्रह है परमेश्वर के That पास से। God blesses me, and because of which I have prosperity. और परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है, उस कारण से मैं समृद्ध हो जाता हूं। But if I'm not careful, अगर मैं ध्यान न दूं, I see that I can even fall because of this money. और मैं देख सकता हूं कि इस पैसे के विषय में मैं गिर सकता हूं। Right? Let's look at the verse that we read yesterday. और कल जो हमने पढ़े हुए वचन था उसमें ध्यान देंगे थोड़ा। Let's go to 1 Timothy chapter 6. पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय की ओर जाएंगे। पहला तिमुथियुस 6। Okay. Let's read a few verses from there. हम कुछ पद उधर में से पढ़ेंगे।
पहला तीमुथियुस 6। First Timothy chapter 6, it says, the love of, I'm looking at verse 10, it says, the love of money is the root of all kinds of evil. और 6 के 10 में लिखा हुआ है पैसा जो है सारे बुराई का जड़ है। And it says here, some have strayed from the faith in their greediness. और उस लालच के कारण जो है कुछ लोग विश्वास से हट गए हैं। Okay. So we need to understand that God wants to bless us. हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है And his blessing results in prosperity. और उसकी अनुग्रह हमें समृद्ध बनाता है। But the love of money is the root of all kinds of evil. लेकिन पैसे को का लालच जो है वो सारे परेशानियों का जड़ है। And it even causes some people to stray away, to go away from their faith in Jesus. और वो यीशु मसीह पे धरे हुए विश्वास से भटक जाने का भी कारण बन सकता है। And so it says here, they strayed away, and because of their greed, they have pierced themselves, which means, they have allowed certain things to destroy them. And it says they have pierced themselves with many sorrows. और उसमें लिखा भी ऐसा भी गया है, इस कारणवश उन्होंने अपने आप को छल्ली करने का मौका भी बना कर दिया है। So what should the Christian do? और मसीही लोग करना है तो क्या करना है? Right? Should they ask God for prosperity? क्या परमेश्वर से पूछना है कि हे प्रभु मुझे समृद्ध बना दे? Should they ask God to bless them? क्या परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे? Or should they stay away from God's blessing, which is money? और क्या वो हम लोग जो है उस परमेश्वर का अनुग्रह जो पैसा है उससे दूर रहना है? Ask God for money. Yeah, but then if money is going to Through godly ways. Godly ways. Okay, so what will you do? आप क्या करेंगे? Right path for running, earning. मतलब living, earning, earning. Okay. कमाने का सही रास्ता। Anything else? और कुछ? See, one conclusion that we can come to is, I don't want anything to do with money. एक हम निर्णय ऐसा भी ले सकते हैं कि मुझे पैसे के मामले में कोई संबंध ही नहीं। Right? But that's not possible. वो हो नहीं सकता। लेकिन right? In this world, you need. इस दुनिया में हम जब रहते हैं पैसे की जरूरत है। If you want to do ministry also, you need money. आप सेवकाई भी करना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है। And if you're doing ministry, church kind of ministry, you'll take some offering. और आप कलीसिया की सेवकाई करते हैं तो आप दान चंदा तो लेंगे जरूर। Right? So money is there somewhere. कहीं ना कहीं रीति से किसी ना किसी रीति से पैसे है। Right? So the issue is this: since money has this effect or pull on us, और परेशानी ये है कि किसी ना किसी तरीके से पैसा जो है उसकी ओर हमें खींचता है। Right? Money has this power or ability. और पैसे के पास ये क्षमता है। So we should die to that power or ability. और उस खिंचाव की ओर हम अपने आप को मृत्यु मतलब मारना है। Yeah, we should die to those desires. उस इच्छाओं के प्रति हमारा स्वयं त्याग होना जरूरी है। Right? Because the previous verse that verse 9, it says, those who desire to be rich fall into temptation. और उसमें लिखा हुआ है कि नवाब में लिखा हुआ पद में लिखा हुआ है, जो इसकी इच्छा करते हैं वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। Right? So this love of money, this desire to be rich, and also this trusting in the material things or trusting in wealth, that has to die. और जो पैसे के ऊपर हमारा आसरा लगाना या इस दुनिया के सामग्रियों के ऊपर आसरा लगाने के विषय में हमें त्याग करने की जरूरत है। Right? These things have to come to an end in our lives. और ये सारे चीजों का एक खात्मा करने की जरूरत है। And God can really use us to be a blessing. और परमेश्वर दूसरों के प्रति हमें एक अनुग्रह का कारण भी बना सकता है। Now we're going to look at the fact that God gives. He is the giver
of material blessings. और हमें ये देखना है कि अब ये देखे आगे देखेंगे कि परमेश्वर है वो स्रोत जो हमें पैसा या संपत्ति देता है। Right? We looked at the many men of God whom God prospered, whom God blessed. हमने देखा कई लोगों के बारे में वचन में से जिसको परमेश्वर ने समृद्ध बनाया। But let's go through some scriptures, both in the Old and New, which talk about the fact that God is the giver of good gifts. He's the blesser. और हम वचन के अंदर से देखेंगे पुराने नियम से और नए नियम से कि परमेश्वर है वो स्रोत जिसके द्वारा हम समृद्ध होते हैं। Right? So we don't have any doubts about God blessing us. और हमारे दिल में कोई भी संदेह नहीं है कि परमेश्वर जो है अनुग्रह देता है। Right? But the blessing of God also includes material blessings. और परमेश्वर का अनुग्रह जो है सामग्री देने के हिसाब से भी अनुग्रहित है। So let's look at some examples of this. हम कुछ उस उदाहरणों को देखेंगे। Okay. Now, in 2 Samuel, we read about this man called Obed Edom. और हम दूसरे समूएल के अध्याय में किताब में हम इस आदमी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है ओबेद एदोम। When they were bringing the ark of David the ark of the covenant from the Philistines into Jerusalem, और परमेश्वर का संदूक जब लेकर यरूशलेम की ओर लेकर जब आ रहे थे, you know there was one accident which happened. एक परेशानी हुआ था जिसके कारण से आप जानते हैं क्या Right? हुआ था। Something tragic happened. वहां पर कुछ दुर्घटना हुआ था। Right? A person died because he reached out and touched the ark. और एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया था क्योंकि उसने जाकर उस संदूक को छू लिया। So the ark of the Lord was kept in this house of this man called Obed Edom. और ये घर जिसके नाम से था ओबेद एदोम, उसके घर में ये परमेश्वर का संदूक रखा गया था। Right? And that ark of God, ark of the covenant, it actually represented the presence of God, the power of God. और ये परमेश्वर का संदूक जो है परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति को दर्शाता था। Okay, not only did it represent the presence of power of God, the presence and power of God was resident in that thing. और वो सिर्फ दर्शाता नहीं था परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति, लेकिन उस संदूक के अंदर परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति वास करता था। Right? So it says here that the house of Obed Edom was blessed. The Lord blessed Obed Edom and all his household, it says here. और यहाँ पर अब जब पढ़ते हैं दूसरा समूएल 6 के अंदर कि ओबेद एदोम का घर जो है और उसका पूरा घराना परमेश्वर के द्वारा अनुग्रहित हो गया था। Now, we don't know in all the ways that he was blessed. हम जानते नहीं कि किस किस रीति से उसको अनुग्रह मिला था, But his blessing was visible to others. लेकिन उसका जो अनुग्रह था दूसरों के द्वारा देखा जा सकता था। Well, how do we know that? हम कैसे वो देख सकते हैं? Like if you look at verse 11, 11वें पद में अगर देखें, I'm sorry, you look at verse 12. 12 में अगर देखेंगे, This is 2 Samuel 6 and verse 12. दूसरा समूएल 6 का 12, And in that verse, it says that people went and told King David, और उसमें कहा गया है कि लोग जाकर दाऊद राजा को ऐसा कहते हैं the Lord had blessed the house of Obed Edom. और कि परमेश्वर ने ओबेद एदोम के घराने को अनुग्रह किया है। Right? So people noticed. और लोग उसको देखते थे। There was something happening in that house. और उस घर के अंदर कुछ हो रहा था। There was success. उधर सफलता था, There was growth. उधर बढ़ापन था, There was increase. और वहां पर ऊंचाई था। And it was very visible. It was plain to see. और वो दिखने लायक था। And therefore, people saw that and they went and told King David, you know what? This Obed Edom, in whose house the ark is there, he's blessed. और वो इस कारणवश दिखता था उसका अनुग्रह, इस कारणवश लोग जाके दाऊद राजा से कहते थे वो ओबेद-एदोम जिसके घर पर परमेश्वर का संदूक है, वहां पर परमेश्वर ने अनुग्रह प्रकट किया है। Right? So we understand something, हम यहाँ पर कुछ समझ सकते हैं that the very presence of the Lord, और परमेश्वर का जो हुजूरी या उपस्थिति, like the glory of the Lord, और परमेश्वर की महिमा is to bring change in the environment. वो वातावरण को ही बदल डालता है। Like last week, you would have learned about how the presence of God heals, brings about healing. और पिछले हफ्ते हमने सीखा होगा कि इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति चंगाई को लेकर आता है। Right? Even if people did not stay in faith,
even if they did not ask in faith, just by being in the presence of God, they were healed. और लोगों ने चंगाई को पूछा नहीं था, मांगा नहीं था, लेकिन भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, इस कारणवश उनके जीवन में चंगाई आ गया. Right? So just like that, the presence and the glory of God, उसी प्रकार परमेश्वर का जो उपस्थिति और उसकी महिमा, in that presence there is blessing and prosperity. और उस उपस्थिति के अंदर अनुग्रह और समृद्धि है. Because this is who God is. यही है परमेश्वर का स्वभाव. His heart is to bless. उसका हृदय में है कि वो दूसरों को अनुग्रह दे. That's his character and nature. और वो है उसका चरित्र और उसका स्वभाव. Right? And we are his children. और हम उसके संतान हैं. And we have to gratefully receive from him. और वो उस चीजों को हमें धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है. Let's look at one more person. एक और व्यक्ति के जीवन में देखेंगे. This incident is about Elisha and the supernatural flow of oil. और यहाँ पर हम एलिजा और अलौकिक तरीके से तेल का मात्रा बढ़ने के विषय में देखते हैं. We read about this in 2 Kings chapter 4. और दूसरा राजा 4 में हम ये पढ़ते हैं. Right? Now it was a very tragic situation. और ये एक गंभीर बात थी. This woman's husband was dead. और ये स्त्री का पति जो है चल गुजरा था. Not only was he dead, but their economic situation was very poor. They were in a very tough condition. और वो उसका पति का देहांत के साथ साथ उसका आर्थिक अवस्था जो था बहुत खराब था. Now they owed a lot of money to someone. और वो कर्ज में डूबे हुए थे. Now the Bible doesn't say how they got to be in that debt, but they owed a lot of money. और वो बताता नहीं है वचन कि किस प्रकार से उनको कर्ज में डूबे थे, लेकिन वो कर्ज चुकाने की जरूरत था. Right? So the husband is dead. पति चल गुजरा है. And probably he was the only earner in the family. हो सकता है कि वही होगा जो रोटी कमाता होगा घर में. And this lady, she has 2 sons even. और उस औरत के पास 2 बेटे हैं. And the person who owes, to whom they owe money, he is coming to take away the children also, take away the sons. और वो व्यक्ति जिसके पास से उधार लिया है, वो व्यक्ति उस स्त्री के बच्चों को भी लेके चल जाने की कगार में है. Because she cannot give back the money. क्योंकि वो पैसा चुका नहीं पा रही है. So he's saying, okay, whatever you have, those 2 children, I'll take them so that they can work as slaves in my house. और वो पैसे जिससे लिया है वो व्यक्ति कहता है तुम पैसा तो दे नहीं सकते, मैं 2 बालकों को ले जाऊंगा ताकि वो मेरे दास बनकर काम कर सके. Right? So Elisha asks, what do you have in your house? और एलिसा पूछता है कि तुम्हारे घर में क्या है. So the lady says, I have nothing but a small jar of oil. वो स्त्री कहती है एलिसा से मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटी कुप्पी में तेल है. So he says, go gather vessels. और वो एलिसा कहता है कि जाओ और जितना सारा बर्तन संग्रह कर सकते हो लेकर आ जाओ. He says, go borrow these vessels from your neighbors. और वो कहता है कि जो बर्तन है वो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में से भी लेकर आ जाओ. Gather lots of vessels. और उनने क्या किया, बहुत सारे बर्तन लेकर आ गए. And then Elisha says, when you come into the house, और वो कहता है कि एलिशा कहता है कि तुम उसके बाद जब अपने घर में आ जाओगे, you close the door. आप अपने घर का द्वार बंद कर दो. And then you take this oil and you pour it into all the vessels. और ये छोटी कुप्पी में जो तेल है उसको लेकर इन बर्तनों में डालना शुरू कर लो. And when the vessel is full, you keep it aside and start pouring it in the other vessels. और वो बर्तन जब भर जाएगा उसको एक छोर रखकर दूसरे बर्तन में डालिए. So she obeyed. और उस स्त्री ने एलिशा की बात मान ली. And they started pouring it out. और वो तेल को डालना शुरू किया. And they realized that all the vessels were getting filled with this from the oil which was coming from this small jar. और ये छोटे से कुप्पी के अंदर से आने वाली तेल से सारे बर्तन जो है धीरे धीरे भरना शुरू हो रहा है करके ये लोग समझ गए. Right? So they filled all the vessels. उन लोगों ने सारे बर्तन को भर दिया. And then she said, give me one more vessel. और वो कहते हैं कि जो स्त्री कहती है कि एक और बर्तन लेकर आओ. It's very interesting in verse 6. 6वें पद में हम देखते हैं, It says,
when the vessels were full, she said to the son, "Bring me another vessel." And he said, "There is not another vessel. We don't have any more vessels." और उसको वो स्त्री के बारे में हम देखते हैं, जब बर्तन सब भर जाते हैं तो वो स्त्री अपने बच्चों से बोलते हैं कि मुझे एक और बर्तन दो। तब बच्चे बोलते हैं कि अब हमारे पास बर्तन नहीं बचा। And that verse, the last part of that verse says, "So the oil stopped." और उसके अंतिम भाग जो पद है, उसके अंतिम भाग में ऐसा है, बर्तन ना रहते वो तेल का आना भी बंद हो गया। Because there was not another vessel, oil stopped. क्योंकि अब बर्तन बचा नहीं था, इसलिए तेल आना भी बंद हो गया। So she went and told Elisha, वो एलीशा के पास जाती है and then Elisha said, "Okay, you go sell this oil, make money, and then you repay the debt and live on the rest of the money." और उस एलीशा ने कहा कि तुम इस तेल को लेकर जाओ, बिक्री करो और उसमें से जो पैसा मिलता है उससे कर्ज चुकाओ और बाकी पैसे से अपना जीवन को जियो। So we can learn a lot of things from this one particular incident. और ये घटना के अंदर से हम एक बड़ी मुख्य बात को सीख सकते हैं और कई बातों को भी सीख सकते हैं। The first thing that comes to mind हमारे मन में ये ऐसी एक पहली बात ऐसा उठता है is that God wants to intervene in such difficult and tragic situations with his blessing. और उसके परमेश्वर उसके अनुग्रह के साथ हमारे गड़बड़ वाले परिस्थितियों में काम करना चाहता है। He wants to intervene in supernatural ways. वो अलौकिक तरीके से हमारे परिस्थितियों में शामिल होना चाहता है। Like he wants to prosper us even from that very difficult low situation. और वो हमें समृद्ध बनाना चाहता है, चाहे हमारी परिस्थिति छोटा क्यों ना हो। Right? He wants to lift us up from that place. और उस परिस्थिति से हमें परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है। That's something that we see. और वो है जो हम उसमें से एक सीख लेते हैं। And the other thing is the real heart of God. और हम दूसरा उसमें से ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय, The blessing of God. और परमेश्वर का अनुग्रह, It is supernatural, वो अलौकिक है, but it's also something that goes beyond our human understanding. और वो चीजें ऐसी है जो हमारे सोच विचार के परे है। The blessing stopped, or the flow of oil stopped, because there was nothing else to collect it. और वो तेल का आना बंद हो गया क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें उसको डाला जा सके। So we can think, what if there were 10 more vessels or 20 more vessels? और हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर वहां पर 10 या 20 और बर्तन होते तो क्या It will be filled. वो भी भर जाते होते। That is God's heart, वो है परमेश्वर का हृदय, right? That is something that we see. वो वहां पर हम देख सकते हैं। And we see that the blessing of the Lord makes one rich. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है जो हमें समृद्ध बनाता है। The blessing of the Lord enables us to cross over tragic situations. और गंभीर अवस्थाओं में से पार होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें सहायता And we देता see है। that the Lord blesses us with material blessings. और हम देखते हैं यहाँ से कि परमेश्वर हमारे को दुनिया के सामग्रियों के साथ अनुग्रह देता है। So it's not something for us to be proud about or arrogant about. हमें उसमें अहंकार करना या डंब करने की बात नहीं है। Right? Just because God blesses us, it doesn't mean that we put our trust in these blessings. और इसीलिए कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है उसका मतलब नहीं है कि हम उस अनुग्रह के ऊपर आश्रित हो जाएं। Right? It doesn't mean that we become greedy and covet all these material blessings more and more. No. इसका ये भी मतलब नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा इस सामग्रियों के, दुनिया के सामग्रियों और अनुग्रहों के प्रति हम लोभी हो जाएं या लालची हो जाएं। But we should treat the blessings in the right manner. और हमें जो है हमारे परमेश्वर से प्राप्त हुई अनुग्रह को सही रीति से इस्तेमाल करना है। Right? We continue to stay humble. और नम्रता से नम्रता की ओर जाना है। We continue to stay grateful. और हम धन्यवादी तरीके से होना है। And continue to obey God and walk in his ways. और उसके मार्गों पर चलते रहना है और ज्यादा आज्ञाकारी होना भी जरूरी है। Just think, if you are that kind of a man or that kind of a woman, और ऐसा आप कल्पना करें कि आप वो आदमी हैं, आप वो स्त्री हैं, where God can bless you immensely.
और जहां पर परमेश्वर जो है बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है, that you will not become proud or arrogant because of the material blessings. और इस सामग्रियों को, दुनिया के अनुग्रह के मय सामग्रियों को प्राप्त करने के कारण अहंकार या और डंब में ना हो जाए, That you will continue to be obedient to him. और अधिक से अधिक उसमें आज्ञाकारी होते चले। Like for example, if he gives you 10 lakh rupees, और उदाहरण से अगर आप लोगों को 10 लाख रुपए परमेश्वर देता है, and if he says, I want you to give away all the money, और परमेश्वर कहता है कि ये जो मैंने दिया है ये सब तुम किसी और को दे दो, will you do it? क्या आप करोगे? That's the question. वो एक सवाल है, Because he's blessed us. क्योंकि उसने तो अनुग्रह दिया है, He has given those 10 lakhs. और उसने ही वो 10 लाख रुपए दिया And he's है, saying, tomorrow I want you to give away everything. और वो कहता है कि कल के दिन जो है ये जितना मिला है सब कुछ तुम दे दो। But if you're saying, God, but at least 1 lakh, let me hold on. और अगर हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर 1 लाख मैं अपने हाथ में रख लूं तो 1 lakh I will put in fixed deposit. मैं जो है जमा खाते में मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा, I'll pay it as a deposit for this house that I want to stay in. और ये घर जिसमें मैं रहना चाहता हूं उसके प्रति मैं जमा खाते में डाल दूंगा। Right? If we don't have any such reasons अगर मेरे पास ऐसा कोई कारण ना हो and we trust him fully और हम पूर्ण रूप से उस पर आश्रित निर्भर हो जाते and हैं, say, God, I will give it away. और मैं कहूं कि परमेश्वर मैं पूरा दे दूंगा, Because when you gave it, I received it with both hands. क्योंकि जब आपने मुझे दिया था दोनों हाथ से मैंने स्वीकार किए थे, But now you want me to give it, let me give it with both hands. और जब आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उसको दे दूं तो मैं अपने दोनों हाथ से उसको दे दूं। Right? If we would have that attitude, हमारे अंदर अगर वो नजरिया है, सोच है, right, there's no end to the ways in which God can use us. और कोई भी सीमा नहीं है जिस प्रकार से परमेश्वर हमें इस्तेमाल में ला सकता है, He can really trust us. और वो हम पर आसरा अपने आप का आसरा डाल सकता है या निर्भर हो Like He सकता can है, trust us with even more. और वो हमें और अधिक मात्रा में अनुग्रह देगा। He knows, okay, this child of mine, this child will not be moved or be trapped by wealth. और वो जान जाएगा कि ये मेरा बेटा या बेटी वो पैसे के जाल में नहीं फंसेगा। Right? Let's look at one more. एक और को हम देखेंगे। Now, we read this already, it's in Luke chapter 5, it's about Peter and the fish. और हम लूका रचित समाचार में देखते हैं मछली और पतरस के विषय में। Peter had not caught anything. पतरस ने कुछ भी पकड़ा नहीं था मछली, and then Jesus comes and says, you lower the net and you for a catch. और पतरस से यीशु मसीह आके कहता है तुम अपने जाल को गहराई में फेंको। And when Peter obeys, और जब पतरस उनकी बात को, यीशु के बात को मान लेता है, even though it goes beyond his experience, और वो उसके अनुभव के परे जाता है, फिर भी even though it goes beyond his recent experience, just last night he fished, he did not catch anything. कल रात को ही उसने मछली पकड़ने के लिए गया था और कुछ भी नहीं मिला, उसके परे भी हो, Because he trusted in the Lord, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, आसरा रखा, and because he obeyed the Lord, और क्योंकि उसने यीशु पर आज्ञा मानी, he experienced this blessing. और उसने ये अनुग्रह को अनुभव किया। So we see that the Lord wants to bless. और हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रहित हो। And going back to 1 Timothy chapter 6 and verse 17, पहला तीमुथियुस 6:17 में हम वापस चलते हैं। it says that it is God who gives us richly all things to enjoy. और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर है जो बहुतायत से मुझे सब कुछ अनुभव करने के लिए देता है। Okay, why do we doubt God? हम क्यों परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं? We doubt God because of our present condition. क्योंकि हमारे अभी के अवस्था के कारण हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं। Because of our present condition of maybe lack or poverty. और क्योंकि अभी का अवस्था में परेशानी हो, या अभी के अवस्था में गरीबी हो, right? Or maybe because of our present condition of debt or some kind of deep debt or loan.
और हो सकता है अभी की अवस्था में कुछ कर्ज चुकाने की जरूरत हो, कुछ लोन हो, right? So we think that, okay, God cannot help me. और हम ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा, God is not the one who can give me money. और परमेश्वर नहीं है वो व्यक्ति जो मुझे पैसा दे सकता है। So we begin to doubt God. हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करना शुरू कर लेते हैं। But if we come back to this verse, अगर हम इस वचन की ओर वापस आते हैं, he says, let's trust in the living God, और वो उसमें लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, because this living God is the one who gives us richly. और क्योंकि परमेश्वर है जो मुझे बहुतायत से देता है। Let's remind ourselves, हम अपने आप को याद दिलाएं, my God, He's the one who richly gives me all things. और ये याद दिलाएं कि परमेश्वर है जो मुझे बहुतायत से देता है। Right? We need to remind ourselves of this promise during our most difficult times of lack and poverty. और जब हमारे परेशानी के समय में और गरीबी के समय में, कमी के समय में, ये परमेश्वर का कहा हुआ वादा हम अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है, Right? Because it's his nature and character. क्योंकि उसका वो स्वभाव है, उसके चरित्र में वो है। It says God richly gives. परमेश्वर बहुतायत से देता है, He richly gives all things. वो बहुतायत से सब चीजों को देता है। And he says he's not against you enjoying whatever he is giving. और वो मेरे विरोध में नहीं खड़ा होता जब मैं सारी अनुग्रहों को अनुभव करता हूं। Verse 18 says, this 18वां instruction, पद कहता है, do good and be rich in good works. और अच्छा करो, भला करो और भले कामों में निपुण रहो, Right? You be ready to give and willing to share. और आप दूसरों को देने के लिए और दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहो। Right? Thus, just like how you are blessed, you bless others. जिस प्रकार से तुमने अनुग्रह प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम दूसरों को भी अनुग्रह से भरो। Right? That's the only instruction which is there. वही एक निर्देश है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। But what does it say about God's heart, about God's nature? और उसमें परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर के स्वभाव के विषय में क्या कहा गया है? It says He's the one who gives us richly all things. और वो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही है जो हमें संपूर्णता से या भरपूरी से देता है। So we need to list down maybe the lies that we believe about God. हमें जो है एक सूची लिखने की जरूरत है कि परमेश्वर किस प्रकार से मुझे आशीष देता है। No, we need to list List down it the down. lies that we Lies. believe about God. Lies that we believe about God. झूठ. सॉरी Right. हमें एक सूची बनाने की जरूरत है कि हम जो परमेश्वर के विषय में हम झूठ समझते हैं। Sometimes the devil wants us to believe some lies about God. और कभी-कभी दुष्ट ताकतें ये चाहता है कि हम परमेश्वर के विषय में कुछ झूठ विश्वास कर लें। What are some lies that the devil can speak to us about God? और ऐसा क्या झूठ है जो परमेश्वर के बारे में दुष्ट ताकतें हमसे बातचीत कर सकता है? So I want you to write down some lies. मैं चाहता हूं कि आप लोग वो झूठ को थोड़ा लिख लो। Okay, what are some lies that the devil can tell you about God? और ऐसा झूठ क्या है हो सकता है जो शैतान आपको परमेश्वर के विषय में कहेगा? लिख ले। What do you think? Just use your imagination. और आपने कल्पना को इस्तेमाल में काम में लाइएगा। Right. What lies can the devil tell you about God? और परमेश्वर के विषय में शैतान क्या झूठ हमसे बोल सकता है? Right? Just write some 3 lies. और 3 झूठ जो परमेश्वर के बारे में शैतान हमारे से कह सकता है, वो आप अपने किताब में लिखें। Okay, you understood what you're supposed to do? आपको समझ में आया क्या करना है आपको? Any doubts? कोई भी संदेह? They're busy writing. Any doubts? No? कोई संदेह नहीं है? लिख Okay. लिया? Okay, then you write down. तो लिख लें जिन्होंने नहीं लिखा। Okay, 3 lies 3 झूठ that you feel that the devil would want you to believe about God. और वो जो शैतान चाहता है कि तुम परमेश्वर के विषय में विश्वास कर लो। Okay, once you finish that, then we'll proceed further. आप लिख लीजिए। लिखा? और लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। I'll tell you.
ऐसा। एक दूसरे से बात करके लिखने नहीं बोला, आपके मन में जो आता है वो लिखने के लिए बोला। एक दूसरे की किताब में देख के भी मत लिखना। और एक और बार सवाल सुन लीजिए जिनको समझ में नहीं आया, 3 झूठ जो शैतान आपके मन में कहता है यीशु मसीह के या प्रभु परमेश्वर के बारे में, जिस पर आप वो चाहता है कि आप विश्वास कर ले। कौन चाहता है? शैतान चाहता है कि आप विश्वास कर ले, कर ले, कर ले। ये मत लिखना। उदाहरण उदाहरण दे रहा हूं, लिखना नहीं कोई भी। यीशु आपके लिए नहीं मरा है, आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। ये झूठ है। जो शैतान चाहता है कि मैं विश्वास कर लूं, वो मत लिखना कोई भी, चीटिंग हो जाएगा। जो वास्तविक है उसको लिखना है, जो हमारे जीवन में, जैसे मैंने उदाहरण बोला ना आपसे, शैतान बोलेगा कि तुम्हें उद्धार नहीं मिल सकता, तुमने इतने ज्यादा पाप किया है कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, ऐसे झूठ बोलता है। और पैसे के बारे में भी, जो हमने क्लास सीखा उसमें से पैसे के बारे में भी आप लिख सकते हैं। पास्टर जेक्स। Okay.
maybe you've written some, some lies which you feel that the devil is speaking to you, right? हो सकता है कि ऐसे झूठों के विषय में लिखा हो जो आपसे निजी रीति से शैतान आके बोलता हो. Right? But what is the truth that God is speaking to you? What is the truth that Holy Spirit is speaking about those lies? और उस झूठ के विषय में पवित्र आत्मा आपसे क्या बातचीत करता है? Huh? Just So, opposite. so just below each of those lies, you write down what is God, the Holy Spirit, telling you about those lies? What is the truth that He's speaking? और उस झूठ के नीचे, एक एक झूठ के नीचे आप लिख दीजिए उस झूठ के विषय में पवित्र आत्मा आपसे क्या बातचीत करता है. Right? What is the truth that He's speaking which is against those lies? और उस झूठ के विपरीत में क्या परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे सत्य बता के देता है. And वो if you झूठ है तो उसके सत्य क्या है. and if you know a Bible verse that declares the truth about that situation, you write that also. और अगर आपके मन में आता है कोई भी एक परमेश्वर का वचन जो वो एक सत्य है वो भी आप उसके नीचे लिख ले. Right? Just like how you wrote the lie, write the truth from God's word or what the Holy Spirit is putting in your heart. और जो शैतान जो झूठ बोलता है उसी के जगह पर जो पवित्र आत्मा आपसे सत्य बोलता है. And if you can write from the word of God, the scripture, the Bible verse, that will be even great. और अगर आप वचन के अंदर से भी उसको उस सच्चाई को लिख के जोड़ सकते हो वो बहुत बढ़िया होगा. Okay. For each of these lies, write a truth. और ये सारे 3 झूठ जो आपने लिखा है उसके प्रति जो पवित्र आत्मा सत्य बोलता है वो लिख लें. Right? 3 truths against these lies you should write down. 3 सत्य जो इस झूठ के विरोध में आपको लिखना है. Okay, done? हो गया. Okay. If you've not done, you try and search later after the class and write that truth which is from God's word against this lie. और अगर आपका खत्म अभी तक लिखना नहीं हुआ तो क्लास के बाद वचन में से आप ढूंढ लें उसके बारे में और लिख लें. Okay, I want you to turn to Deuteronomy chapter 30 and verse 19. मैं आपका ध्यान जो है व्यवस्था विवरण 20 का Yeah, 30 verse 19. ओके 30 का 19 की ओर ध्यान ले जाना Okay, चाहता हूँ. can somebody read it please? Deuteronomy 30 verse 19. व्यवस्था विवरण 30 का 19. जल्दी से माइक ले लें और पढ़ लें. मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है. इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें. Okay. So right before you right now, if you've written the lies and if you've written the truth of God's word, this is what I believe God would tell you, God would have to say to you. अगर आपने वो झूठ लिखा है
और वो ये है जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। For us, there is truth which leads us to life. और हमारे सामने सच्चाई है जो हमें जीवन की ओर लेकर जाता है। But we also have a lie that causes death and destruction. और हमारे आगे एक झूठ भी है जो हमें विनाश की ओर और मृत्यु की ओर ले जाता है। But what is God's desire? लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है? That you may choose life. ताकि आप जीवन को चुन लें। Because when we choose truth, हम जब जीवन को चुनते हैं it results in life. और वो जीवन को उत्पन्न करता है It results in the life of God. और परमेश्वर के जीवन को उत्पन्न करता है। But when we choose the lie, और जब आप झूठ को चुन लेते हैं it leads us to bondage. और वो जो है दासत्व की अवस्था को लेके आ Okay, जाता है। everyone understanding this? क्या आपको वो समझ में आया? Right? When we choose the lie, it leads us to bondage, it leads us to fear. और जब हम झूठ को चुन लेते हैं वो एक दास की अवस्था में हमें ले जाता है। But when we choose truth, और लेकिन हम जब सच्चाई को चुन लेते हैं it leads us to life वो हमें जीवन की ओर ले जाता है and it sets us free. और वो हमें छुड़ा देता है। So what will you choose? हम क्या चुनेंगे? You'll choose truth, आप सच्चाई को चुनोगे। right? Truth leads to life. वो सच्चाई है जो जीवन में हमें लेके जाता है And that's the option that we have before us. और वो है जो हमारे सामने Okay. दिया हुआ एक मौका। Right? So we'll take a break now हम एक ब्रेक लेंगे and come back at 4:15. और 4:15 को वापस आ जाएंगे। Okay, we'll come back at 4:15. Right. ब्रेक।